Hello everyone, welcome to Way to Infinite Dimensions. There is a beautiful quote by Professor S. Kesavan from the Institute of Mathematical Sciences, Chennai. He says that functional analysis is the marriage of linear algebra and analysis. Okay, so this is our second point of today's lecture. And since we are in the Valentine week of February, I honestly feel this is the perfect time to begin a course for those who truly love mathematics. And today I don't want to start with definitions, theorems, and proofs. Instead, I want to start with an idea that completely changes our intuition. Let's talk about dimensions. Okay, so dimensions can be classified in two categories. One is finite, other one is infinite. Okay, so in finite dimensional world, almost everything is predictable. But the moment we step into infinite dimensional spaces, our institution starts failing unexpectedly. Things that we take for granted suddenly becomes false. For example, uh, if we take a closed and bounded set, okay, then this does not imply that this is compact. Okay, another example can be if you have a series xn, okay, and this is convergent, that is the series xn is absolutely convergent, then this does not implies that the sequence is convergent. This is true in real analysis but not in general. Okay, then those which are linear maps, the linear maps behave wildly. Okay, those are actually not linear in some sense. And another example can be the dimensions. Okay, the dimensions of vector spaces, they become, strange and wild kind of. For example, the dimension of vector spaces, like they are alif naught or 2 to the power alif naught or 2 to the power 2 to the power alif naught, or these kind of weird strange objects. So in infinite dimensions, everything familiar must be questioned again. Okay, these things says us that in infinite dimensions, everything familiar that we familiar about must be questioned again. So this course of functional analysis is entirely about infinite dimensional spaces. Okay. Next. So further, our fourth point today is about background, that to study this course, background, what do we need? Okay, so there are some courses that we must be handy. The first one is obviously real analysis. Second one is linear algebra. Third one is metric and topological spaces. The last one is measure theory and integration. Okay, so these are the basic things that we will require later in this course. But don't worry, whenever any concept is needed, I will recall it briefly and clearly at the point. So since our goal is to study topology of vector spaces, okay, so we will focus on structures that are both vector spaces and topological spaces both. Okay, I mean to say that just look at this figure. This is topological space. Okay, and
this is something vector space. Okay, this does not mean that vector space is bigger in size, or there are many vector spaces than topological spaces. This does not mean. Okay, and metric spaces are somewhere here. These are metric spaces. Okay, so what we are going to do, we are going to study vector spaces, okay, and its topology. So we are actually, what we are doing, we are going to study those spaces which lie in this section, vector spaces and topological spaces both. But there exist other spaces which are only vector spaces, like this. There exist other spaces which are only topological spaces and not vector spaces, which lie here. Okay, so our focus in this area only, this one. Okay, so all those spaces which lie here will be our interest. So in short, what do we mean? I mean to say that our interest lies precisely in those spaces where algebraic structures and topological structures coexist and they interact. Okay, and in this natural setting, functional analysis work. So what we actually do here, okay, let me change the paper. No, I guess we can do it here. The sixth point. So to analyze a vector space, okay, so to analyze a vector space, we need to look more closely inside the space. Okay, what we are going to do in functional analysis, we are going to study vector spaces. Okay, basically vector spaces. To study about vector spaces, what we have to do, we have to go inside the vector space. Okay, and then we have to look two things. Number one, okay, first V is a vector space. Okay, then what we do? We do two things. Number one, we check the nature of elements. Nature of elements means how the elements of this vector space look like. Okay, and second thing, that the distance between 2 points, distance between any two elements, and we know that the element of vector spaces are called vectors, so I will use the term vector. Okay, so these two observations, number one this observation, number two this observation, these two observations creates a shape and structure of the space in our mind, right? So this is how we imagine the geometry of vector space, that how the nature of elements and how any two elements of the vector spaces are far apart, situated far apart. For example, the world we live in, okay, can be seen as a vector space R3. For example, this vector space, this is our real world, okay, and this is also a vector space. Mathematically, this is called Euclidean space, and its geometry is exactly what we see in the real universe. So moreover, there are other vector spaces exist in our real world. Actually, there are uncountably many. Okay, for example, you can look at some. For example, suppose this is the plane. This is also a vector space R2 over R. Okay, that is the plane, and this is a vector space. And on this vector spaces, suppose this is 0 vector, and any line that passes through this, suppose this is Li. Okay, so for every I in a real number which is not 0, okay, 0 भी ले ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, then this Li is a subspace of this V, and every subspace is itself a vector space. Okay, so uncountably many यहाँ पर vector spaces generate हो जाएंगे, जैसे ये है, this is say L1, L2, L3 in this way. Okay, now question arises that does there exist any compact kind of vector space? I mean, like this kind of, say, this kind of vector space, or are you getting the idea? I mean, what I'm trying to say, this kind of something which is a vector space. Okay,
any compact we can hold it in hand and this kind of something. Okay, so the answer is no. Okay, no such compact vector space exists in neither 2D nor 3D nor one dimension. Any dimension, in any dimension does not exist any such compact kind of vector space. What is the reason? So the reason is there is a theorem. Let me write it here. The theorem says a vector space V over R or C, okay, which is cubed with its usual Hausdorff topology is compact if and only if this vector space V is trivial. Okay, now note one thing, that compactness always implies boundedness, even totally bounded, okay, and closed. So in that sense this must be bounded in means limited, कुछ ऐसा shape में आना चाहिए जो limited हो, हाथ में आना चाहिए, right? But ऐसा नहीं होता. A solid shape like football, okay, मतलब कि if you are imagining a vector space that look like a physical object, say a football or some other solid shape which you can hold in your hand, okay, then that does not exist as a vector space in mathematical senses. Why? A solid shape like football cannot be a vector space because it is bounded, okay, and does not satisfy the required closure property. Most importantly, scaling a point on the ball by an arbitrary real number will generally move it outside the ball. What does it mean? If suppose करो आपके पास एक फुटबॉल जैसा ही है और आपने एक एलिमेंट्री यहाँ ले लिया है, सपोज दिस इज ऑन एक्स, ओके, और आपने जो अंडरलाइंग फील्ड लिया है दैट इज़ रियल नंबर, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो इस पे अल्फ़ा एंड सपोज अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस, सो अल्फ़ा एक्स मस्ट बी, अगर ये स्फीयर है जो भी है वी, ये भी इसमें जाना चाहिए. तो अब कोई भी रियल नंबर लोगे तो वो एक्सटेंड करता जाएगा एंड दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी, और ये कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा. तो इस तरह की दिक्कत आएंगी, और आगे जाके हम ये वाला थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, तो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि कॉम्पैक्ट टाइप का कोई सब स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है और वेक्टर स्पेस हमेशा इसी टाइप का एग्जिस्ट करेगा. ठीक, हमारे इस आर्क फील्ड की उसमें. तो आगे बढ़ते हैं. Now question arises, sixth point. Now come to seventh point. Seventh point is a question that what creates a geometry of space. ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी स्पेस को ज्योमेट्री देती है, उसका शेप, उसका साइज़, उसका कुछ फिगर, उसका कुछ लुक देता है, उसका कुछ पिक्चर हमारे दिमाग में इमेजिन करने की वो बनाता है. वो कौन सी चीज़ है? सो द आंसर इज डिस्टेंस. वाई सो? ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल. ओके, सो हम क्या करने वाले हैं कि स्क्वायर बनाने वाले हैं. सपोज एस इज अ स्क्वायर इन R3. ओके, हमारे पूरे इस पर हम एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ हम एक स्क्वायर कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड 4 वर्टिसेस. ओके, तो सपोज x1, x2, x3, x4 आर वर्टिसेस, या फिर 4 पॉइंट्स ले लो, आर 4 पॉइंट्स इन अ स्फीयर, sorry, in the space, say this is V, are vertices of a square and which lie in V. okay, okay, तो क्योंकि ये vertices हैं, so this implies कि जो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है, ये बिलोंग करेंगे सेट S में. ठीक है, और जो S है वो एक सबसेट है इस R3 का. यहाँ तक क्लियर है लॉजिकली. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये कहीं पे भी सिचुएटेड हो सकते हैं. ठीक है, तो हमें इसके ऊपर कंडीशंस डालनी है. तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए इस पर? पहली कंडीशन ये होनी चाहिए
कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बराबर हो। इसका मतलब कि अगर आप x1 से लेके x2 तक के बीच की डिस्टेंस देखें और x2 से x3 तक की, और फिर x3 से x4, और फिर x4 से फिर ऐसे x1, ये सारी डिस्टेंसेस बराबर होनी चाहिए। जैसे ये कंडीशन होल्ड होती है तो हमारे पास बहुत सारे फिगर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, ये हल्का सा बेस है, ये बेस था, ठीक है। सपोज एक पॉइंट ये है से x1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x3। सिर्फ 4 पॉइंट बनाए स्पेस में, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि सिर्फ 4 ही पॉइंट है हमारे स्पेस R3 में। इस पर देखते हैं, या तो ये मतलब ये पॉसिबल केसेस है कि किस टाइप का फिगर बन सकता है। x1 से x2, दिस इज़ x3 एंड दिस इज़ x4, ठीक। यहाँ पर भी या तो ये बनेगा, दिस इज़ x1, किसी को भी कहीं भी ले लो, नहीं इसको है, ये है x1 है, ये वाला ऊपर ऊपर किसका है, क्योंकि R3 है तो पॉइंट्स ऊपर भी जा सकते हैं, x2 x3 और ये x4, ठीक है। तो ये 3 फिगर बन सकता है, यानी कि हमें और भी कुछ कंडीशन इस पे लगाने की ज़रूरत है जिससे ये स्क्वायर का शेप ले ले। अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि हम डायगोनल्स की डिस्टेंस को बराबर रखते हैं। x1 माइनस x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x4, ठीक है। जैसे आप ये कंडीशन लगाएंगे तो अब आपके पास एक फिगर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ पॉइंट्स ही हैं, तो अब आपके पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो सिर्फ 4 पॉइंट्स ही बनेंगे जिनके बीच की डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, बट स्टिल दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर, है ना। बाय डेफिनेशन जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, ये वो नहीं है। ओके, सो इसको स्क्वायर बनाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, इनको कनेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है इनको कनेक्ट करने की। हाउ डू वी कनेक्ट दिस, कि इफ़ x1 माइनस x2, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस x1 माइनस टी प्लस टी माइनस x2। टी क्या है, यानी कहीं का कोई एलिमेंट है उसका, वेयर व्हाट इज टी इज सम एलिमेंट ऑफ v, उस स्पेस का कोई एलिमेंट है। अगर ये होल्ड हो जाए, यानी कि x1 और x2 है ना, इसके बीच में अगर कोई एलिमेंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऐसी हो जाए, और ये चीज़ हमेशा ये बात इम्प्लाई करे कि t बिलोंग्स टू s, तो अब ये कंडीशन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी कंडीशन अगर होल्ड होती है किसी भी t के लिए, ठीक है, तो हमारे पास जो फिगर बनेगा इस बार वो x1 x2 x3 x4, तो वो ये वाला बनेगा। यानी कि एक लाइन सेगमेंट होगा और उसके साथ 2 पॉइंट्स होंगे। खास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी, इसके साथ साथ यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी बराबर होगी। ये और ये अलग हो सकते हैं डिस्टेंसेस। नाउ इसी से सेम आइडिया आप आगे बनाओ, ये सेम यहाँ भी करो, यहाँ भी करो और यहाँ भी करो, हो जाएगा। सो सिमिलरली हमें क्या करना है कि x2 माइनस x3, ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच में बना रहा हूँ मैं, कि अगर इनके बीच में एक कोई ऐसा आ जाए कि x2 माइनस s प्लस s माइनस x3 ऐसा हो जाए, ठीक है। इफ़ दिस इम्प्लाइज कि जो ये s बीच में एलिमेंट आया है वो भी s में चला जाए। स्टार्टिंग में s कहाँ से लिया था, v से लिया था। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, और साथ साथ x3 माइनस x4 और x4 माइनस x1, यहाँ पे भी मैं सेम सिंबल s से दिखा रहा हूँ, s माइनस x3, सॉरी ये x3 और x4 माइनस s, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन और आ जाए तो ये बाकी तीनों बाउंड्रीज भी बना देंगी। तो इस केस में फाइनली आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, x1 x2 x3 और x4। सो दिस इज़ फाइनली स्क्वायर, ठीक है। मान लो मैं एक कंडीशन और इस पर यूज़ करता हूँ कि x1 माइनस x3 दिस इज़ इक्वल्स टू x1, कोई एक ऐसा एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है अगर t प्लस t माइनस x3, एंड दिस कंडीशन ऑलवेज इम्प्लाइज, कोई t ऐसा अगर एग्जिस्ट करे और वो हमेशा ये इम्प्लाई करे कि t भी s में है, ठीक है। तो अब ये कौन सी चीज़ इम्प्लाई करेगा कि अब आपने x1 और x3 ये दोनों
इन दोनों को कनेक्ट करने वाले पॉइंट्स भी आ गए हैं। तो अब आपके पास जो फिगर बनेगा वो ये बन जाएगा। सो दिस इज़ हाउ मैथमेटिकली हम ये सब लिखते रहते हैं, और यहाँ तो ज्योमेट्री बन रहा है बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और पांचवी कंडीशन, अगर आप इसमें x2 और x4 लिखेंगे, ठीक है, और x1 माइनस से s प्लस s माइनस x4 इम्प्लाइज, इफ दिस कंडीशन इम्प्लाइज दैट s बिलोंग्स टू s, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये भी और ये भी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा आगे यूज़ करने वाले हैं कि फंक्शनल एनालिसिस में हम आगे करने के वाले हैं, इस वजह से इसका थोड़ा सा मैं बेस का फ़ायदा उठाऊंगा और फिर थोड़ा सा और आइडिया लगेगा, ठीक है। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि जो x1 x2 x3 हैं, हमारे पास v था r³ ओवर r, ठीक है, और इसी के अंदर बिलोंग कर रहे थे हमारे x1 x2, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर थे। इसका मतलब क्या है, सो जो ये x1 है ना, वो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, ऐसे इस टाइप का लुक, हर एक पॉइंट ट्रिपलेट है एक, ठीक है। ऐसे ही x2 भी कुछ होगा, सपोज PQR, ऐसे x3 x4, ठीक है। एंड वो, और ये x y z जो हैं सारे रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पे PQR भी रियल नंबर्स हैं। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। हमारा हुआ था 7th नंबर तक। तो 7th नंबर में हमने क्या देखा, 7th नंबर में हमें ये देखा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज्योमेट्री बनानी है तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, उसके पॉइंट्स की, जो x1 x2 x3 x4 थे, और उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, है ना। सो इन मैथ्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस इज टर्म्ड एज मेट्रिक। शायद 8वां नंबर है, मेट्रिक। जो डिस्टेंस है मैथ्स में उसको मेट्रिक का नाम दिया जाता है, और जो मेट्रिक होता है दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन, ठीक है। अगर आप जैसे v वेक्टर स्पेस था और इस पर आप डिस्टेंस का नोशन डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसको हम नॉर्मली d से डिनोट करते हैं। तो वो प्रोडक्ट स्पेस v क्रॉस v से जो अंडरलाइंग फील्ड है वहाँ पे फंक्शन होता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये इसके किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो वेक्टर स्पेस है, सपोज दिस इज वेक्टर स्पेस, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करता है, ठीक है। ओके, सो अब फाइनली हम कंक्लूड करने वाले हैं इसको। सो इन फंक्शनल एनालिसिस वी गो फार बियॉन्ड द बेसिक डिस्टेंसेस, ओके, कि नॉर्मल एक से दूसरे की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ऐसा नहीं होता हमेशा, ठीक है। वी इंट्रोड्यूस्ड अ वेराइटी ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स इन फंक्शनल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, जैसे हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे अभी, ओके। सो चैप्टर 1 में हम नॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। एक टर्म है नॉर्म। नॉर्म का मतलब क्या होता है, ये उसके अंदर जितने वेक्टर्स होते हैं उसकी अपनी पर्टिकुलर लेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने जैसे हमारे पास वेक्टर स्पेसेस होते हैं मैट्रिसेस का, है ना। फिर हमारे पास वेक्टर स्पेसेस है सपोज सीक्वेंसेस का, है ना। तो और भी हैं वेक्टर स्पेस, हमें पता है कोई भी फील्ड ले लो और वो अपने ऊपर हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनाता है, राइट। तो अगर मैं नॉर्म की बात करूं और कोई x है जो कि एक वेक्टर है से v1 में, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स की लेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एलिमेंट लिया है 1 2 3 0 -1 3, ये एक एलिमेंट है इस वेक्टर स्पेस v1 का, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि इस मैट्रिक्स की लेंथ क्या है। अगर वेक्टर स्पेस हमारा सीक्वेंस का हुआ तो हम बात करेंगे कि किसी सीक्वेंस की लेंथ क्या होती है। अगर वेक्टर स्पेस हमारा फील्ड हुआ, ठीक है, स्केलर फील्ड हुआ, तो हम बात करेंगे किसी स्केलर की लेंथ क्या होती है, किसी नंबर की लेंथ क्या होती है। आप समझ रहे हैं कि हम कितने वियर्ड थिंग्स से डील करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने यहाँ पर स्क्वायर बनाया था जहाँ पे x1 x2 ऐसे वर्टिसेस थे, x4। तो हम जैसे ये पॉइंट्स है खुद में, तो हम बात करेंगे कि जो x2 है इसकी लेंथ कितनी है, इस पॉइंट की लेंथ कितनी है। ये हमेशा 0 नहीं है, ठीक है। हमारा इंट्यूशन कहता है कि ये कुछ पॉइंट की भी लेंथ होती है, क्या होती है लेंथ, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर x2, ओके। सो हम अच्छे से करेंगे इसको बाद में, नॉर्म वगैरह ये दोबारा से आएगा, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो यहाँ पर जैसे ही हम कोई वेक्टर स्पेस होता है हमारे पास और उस पर हम एक नॉर्म डिफाइन कर देते हैं,
तो ऐसा जो स्ट्रक्चर हमारे पास जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है उसको हम कहते हैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, अगर ये स्पेस कंप्लीट भी हो जाए इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में तो हम उसको बनैक स्पेस भी कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने स्क्वायर बनाया है तो ये तो दिख रहा है। सपोज़ अगर हमारे पास इसका मतलब क्या हो कि जैसे अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस होता मैट्रिसेस का, राइट, तो ये x1 x2 x3 और x4 ये सारे मैट्रिसेस होते हैं और इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे मैट्रिसेस होते हैं। आप समझ रहे हैं कि स्क्वायर का मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्क्वायर का मतलब एक्चुअल में स्क्वायर नहीं है जो हमारे दिमाग में इमेजिन होता है, यानी हर एक पॉइंट यहाँ पर जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे मैट्रिसेस हैं। हो सकता था कि वेक्टर स्पेस हमारा फंक्शंस का हो तो ये सारे के सारे पॉइंट्स फंक्शंस होंगे या सीक्वेंसेस हो सकते थे। हम यहाँ स्क्वायर ना बना के सर्कल बना सकते हैं, डिस्क बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे पूरा भरा हुआ ओपन डिस्क, क्लोज्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रॉपर। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 में हमने नॉर्म इंट्रोड्यूस किया, ऐसे ही चैप्टर 2 आएगा हमारा जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या काम करता है? जैसे हमने किसी भी वेक्टर की लेंथ यहाँ पे निकाली, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट क्या करता है? किसी दो वेक्टर के दो पॉइंट्स के या वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करता है। ठीक, यानी कि हम इसमें बात करेंगे कि जैसे सपोज़ 1 2 3 1 0 -1 एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स सपोज़ 0 0 1 0 0 पाई, ये दो मैट्रिसेस हैं। सपोज़ ये M3×2 की ओवर R, ये दो एलिमेंट्स हैं यहाँ के। हम बात करेंगे कि दो मैट्रिसेस के बीच का एंगल क्या है या दो सीक्वेंसेस के बीच का एंगल क्या है। इनर प्रोडक्ट अल्टीमेटली एंगल को बताता है। अब दो रियल नंबर है सपोज 2 और पाई, हम बात करेंगे कि 2 और पाई के बीच का एंगल क्या है। ठीक है, या फिर 0 और 7 के बीच का एंगल क्या है। मतलब इस तरह की अजीब अजीब सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, बट वो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना डिटेल करने जाएंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम एब्स्ट्रैक्ट वे में ही इसको पढ़ते हुए निकलेंगे और आप जितना सोच सकते हैं गहराई से वो आपके लिए उतना हेल्पफुल होगा। सो फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं कि कौन कौन सी बुक मैं फॉलो करने वाला हूँ इसको आगे करने के लिए। ठीक है, सो बुक्स के लिए आप देख लो एक बार रेफरेंसेस के लिए। 3 बुक जनरली मैं फॉलो कर रहा हूँ। नंबर पहला ही है, बहुत शानदार किताब है, इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस। ओके, और ये बुक के राइटर हैं G.F. सिमंस। ठीक है, अभी 2019 में ही चल बसे सर, यूएस से थे, यूएस में पढ़ाते थे। अगली बुक है फंक्शनल एनालिसिस नाम करके यह बुक। ठीक है, और इसके राइटर है S. केशवन। और अभी बताया था स्टार्टिंग का पहला कोटेशन ये इनकी बुक से था, इनसे ही था, मतलब बुक से तो नहीं। और तीसरी बुक बहुत ही फेमस बुक है, इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशंस। सॉरी, मेरा ध्यान लिखते लिखते पता नहीं स्क्रीन पे थोड़ा इधर उधर हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। इसके राइटर है एरविन क्रेसजिग। ठीक, तो ये 3 बुक्स हैं, इजीली अवेलेबल है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं तो इन तीनों को ही फॉलो कर रहा हूँ और इन सब के एक्सरसाइजेज भी साथ साथ सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ। और मुझे जो लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो उठने चाहिए बीच में, जो हम कई बार नहीं उठा पाते, ठीक है, तो वो बीच में मैंने अराइज़ किए हैं, उसको सॉल्व करा है। और अगर आपको लगता है कि बीच में कोई सवाल होना चाहिए तो वो एक QR कोड आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पे सीधे अपने डाउट्स शेयर कीजिए मुझसे। थैंक यू सो मच। बाकी बातें हम अगले लेक्चर से करेंगे और आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चले कि ऑडियंस कितनी है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतनी मेहनत करूँगा लेक्चर्स को आगे प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने में। थैंक यू सो मच।